I hope topic number one, activity one, task one, which was defined, has helped you as a teacher in some way to understand those children who are falling behind in your classroom. Now, let's come to the second topic, which is differentiate. ایز اکیڈیمک کوچز ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ٹیچرس کو ایسی روٹینز ایسی اسٹریٹجیز بتا سکیں جو کہ کلاس روم مینجمنٹ کے اندر اور اکیڈیمک ڈیولپمنٹ کے اندر ان کی ہیلپ کر سکیں. اسی طرح ایز اکیڈیمک کوچز ہم کچھ ایسے انٹرونشنز بھی لے کر آتے ہیں جو کہ نارمل کنونشنل میتھڈ سے ہٹ کے ہوتا ہے تاکہ ٹیچرز بہتر طریقے سے کلاس روم کو مینیج کر سکیں اور بچوں کی کارکردگی کو امپروو کر سکیں. تھوڑے سے ایم ایل ویز ہوتے ہیں. لیٹ می بی ویری کلیئر اوور ہیئر کہ ایم ایل وی کیا ہوتا ہے. ایم ایل وی از میکنگ لرننگ ویزیبل. میکنگ لرننگ ویزیبل کے بھی کچھ طریقے کار ہوتے ہیں جو کہ ہم کلاس روم کے اندر استعمال کرتے ہیں تاکہ بچوں کو اپنی جرنی اور اپنا پروسیس سمجھ آ سکے. بیکاز وی اسٹرانگلی بلیو کہ اٹس ناٹ دی آؤٹ کم دیٹ یو شوڈ بی ورڈ اباؤٹ, اٹس دا پروسیس دیٹ یو شوڈ فوکس آن. سو آج ہم روٹینس, اسٹریٹجیز, انٹرونشنز اور ایم ایل ویز کے بارے میں بات کریں گے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے کہ ان میں فرق کیا ہے. So let's differentiate and let's try to comprehend or understand these terms. میں کوئی گہرا فلسفہ بیان نہیں کرنے جا رہی. میں کوشش کروں گی کہ بہت آسان لفظوں میں بہت سمپل طریقے سے آپ کو ان چیزوں کو بیان کر سکوں تاکہ کوئی بھی کنفیوژن نہ رہے. روٹین, ایک روٹین کیا ہوتی ہے؟ ایک وہ چیز یا ایک وہ طریقہ جو آپ ہر روز کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی کا روٹین بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ جب آپ سو کے اٹھتے ہیں آپ پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ سو کے اٹھنے سے فوراً بعد اپنا موبائل پکڑتے ہیں, یا تو اپنا واٹس ایپ چیک کرتے ہیں یا تو سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی چیک کرتے ہیں. اسی طرح دوسرا کام وہ شاید جا کے اپنے دانت برش کرتے ہوں گے. سو یہ آپ کی روٹین کی ایکٹیویٹیز ہیں. اسی طرح کلاس روم کے اندر بھی کچھ روٹینز ہوتی ہیں جس کا بچہ عادی ہوتا ہے, وچ مینس کہ وہ پریڈکٹیبل ہوتی ہیں. بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم جب اس کلاس میں جائیں گے یا ٹیچر آئے گی تو ہم نے ان روٹینز کو فالو کرنا ہے. مثال کے طور پہ جب ٹیچر کلاس روم کے اندر آتی ہے اس کی گریٹنگ کی ایک روٹین ہوتی ہے. اسی طرح اس گریٹنگ کا جو جواب ہوتا ہے بچوں کی بھی ایک روٹین ہوتی ہے. سو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بہت پریڈکٹیبل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ٹیچرز ایز ویل ایز اسٹوڈنٹس بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں اس چیز کو بار بار دہرانے میں, اور اس کی وجہ سے کلاس روم کے اندر ایک آرڈر اور ایک اسٹرکچر پیدا ہوتا ہے. یہاں پہ میں تھوڑا سا ایمفسائز کرنا چاہوں گی کہ رولز اور روٹینز دو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ رول کیا ہوتا ہے؟ اسکول وقت پہ آنا ایک رول ہے, مگر اگر اسکول وقت پہ نہ آیا جائے تو اس کا ایک ریپریکشن ہوگا, یا تو ایک پنشمنٹ ہوگی, یا تو فائن ہوگا, یا کسی اور طریقے سے اسکول آپ کے ساتھ بہت سختی سے پیش آئے گا کہ بچے کو وقت پہ لانا آپ کے لیے لازم ہے. اب وہ ایک رول ہے. دوسری طرف ایک روٹین ہوتی ہے. روٹین کانسٹنٹ ریمائنڈرز ہوتے ہیں, بار بار بتانے کا طریقہ کار ہوتا ہے تاکہ بچے کی عادت وہ بن جائے. سو ہم نے کچھ چیزیں بچوں کی عادت بنانی ہوتی ہیں, دیٹ از وائی وہ ہماری روٹینز بن جاتی ہیں. مثال کے طور پہ کلاس روم میں آتے ساتھ ہی اپنا بیگ کھولیں اور اپنا لنچ باکس جا کے لنچ ریک پہ رکھیں. اب بچہ ہر روز یہ ایکٹ دہراتا ہے جس کی وجہ سے اس کی وہ روٹین بن جاتی ہے. سملرلی جب ٹیچر کلاس میں آتی ہے گریٹنگ کے بعد جو پہلا کام ہوتا ہے وہ ٹیچر سکھاتی ہے بچے کو ڈے ون سے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے ٹیبل کو آرگنائز کرنا ہے. یعنی ٹیبل کے اوپر آپ کا پینسل, اریزر, شارپنر یا آپ کا پین پڑا ہوا ہو. اسی طرح جو پہلی کلاس ہے اس کی کتاب اور اس کی نوٹ بک آپ کے سامنے ہونی چاہیے. جب کلاس روم ختم ہو جاتی ہے تو وہ نوٹ بک اور وہ کتاب آپ کے بیگ میں چلی جاتی ہے اور دوسرے کلاس کی نوٹ بک اور کتاب آپ کے سامنے آ جاتی ہے. سو یہ کچھ کلاس روم روٹینز ہیں جو کہ ٹیچرز بناتی ہیں, یہ بچے نہیں بناتے. یہ ٹیچرز کا کام ہوتا ہے کہ وہ یہ روٹینز بنائیں تاکہ بچے اس آرڈر کو ہر روز فالو کریں اور پھر ان کی یہ ایک عادت بن جائے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو کچھ مثال دی ہیں روٹینز کی. سو روٹینز ٹو اسٹارٹ دا ڈے, greeting students at the door, starting class on time, which is also a routine. Routines during the class, bathroom breaks, assessing materials, handling late work, planning time for closure, dismissing students. All these things are routines جو کہ ٹیچرز ہر روز اپنے کلاس میں استعمال کرتی ہیں اور جس کا بچہ عادی ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں اسٹریٹجیز کے اوپر. اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں؟ اسٹریٹجیز کسی میتھڈ یا کسی طریقے کو کہتے ہیں, وہ طریقہ جس میں جو نالج
आपके ज़हन में है वो आप ट्रांसफ़र करते हैं बच्चों पे, या अपनी क्लास रूम में अपने आइडियाज़ को जिस तरीके से आप रिप्रेज़ेंट करते हैं, जिस तरीके से कॉन्सेप्ट को आप डिलीवर करते हैं, जिस तरीके से अपनी नॉलेज को दूसरी नॉलेज में ट्रांसफ़र कर देते हैं, इस चीज़ को स्ट्रैटेजी कहते हैं। ये वो तरीका, ये वो मेथड होता है जिससे बच्चा क्लासरूम के अंदर सीखता है, और ये नित नए तरीक़ेकार होते हैं। इतनी स्ट्रैटेजीज़ है इस वक़्त कि जब आप खोलेंगे तो आप खुद परेशान हो जाएँगे कि मैं किस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करूँ, क्योंकि इतनी स्ट्रैटेजीज़ इस वक़्त अवेलेबल हैं। लेकिन हम एज़ एकेडमिक कोचेज़ कोशिश ये करते हैं कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो हम आपके साथ शेयर करें, ताकि आप वो अपनी क्लासरूम में इस्तेमाल करके बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकें, क्लासरूम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें, और साथ-साथ उनके एकेडमिक स्किल्स को डेवलप कर सकें। स्ट्रैटेजीज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि ना सिर्फ आपको हेल्प करती हैं क्लासरूम मैनेज करने में, बल्कि इन स्ट्रैटेजीज़ की बदौलत क्लासरूम का एक कल्चर बन जाता है। ये वो कल्चर होता है जिसकी वजह से बच्चे उस क्लास में अट्रैक्ट होते हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि बच्चे कुछ क्लासेस में जाने का बहुत शौक रखते हैं, मत कुछ क्लासेस में जाने का कतई शौक नहीं रखते। वो उन क्लासेस में जाने का शौक इसलिए रखते हैं बिकॉज़ उसकी जो एनवायरनमेंट होती है, उसका जो कल्चर होता है, वो उसको इनवाइट करता है। There is curiosity, there is an environment in which they want to learn. So किन चीज़ों पे ये स्ट्रैटेजीज फोकस करती हैं? ये स्ट्रैटेजीज फोकस करती हैं लैंग्वेज पे, लैंग्वेज जो कि टीचर इस्तेमाल करती है, बिहेवियर पे जो कि टीचर का होता है और बच्चे का होता है। ये स्ट्रैटेजीज फोकस करती हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, ये स्ट्रैटेजीज फोकस करती हैं एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। बच्चा को पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। सिमिलरली एक टीचर को भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हर और हिम। इसी तरह इंस्ट्रक्शंस आर समथिंग विच आर एक्सट्रीमली वाइटल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं बच्चे उसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना सीखते हैं। छोटे बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शंस को आपको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे चलना पड़ता है ताकि उनको पता हो कि उन्होंने करना क्या है। जब आप एक ही इंस्ट्रक्शन सिर्फ देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इसका मतलब ये है कि आप ए से शुरू करेंगे और जी तक, ए बी सी डी सारे के सारे जो स्टेप्स हैं उनको कवर करते हुए, इंस्ट्रक्शंस को लेते हुए चलेंगे। इस चीज़ को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। टीचर्स कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूटीन्स और स्ट्रैटेजीज में क्या फ़र्क है। बहुत सिंपल सा फ़र्क है। सिर्फ ये है कि स्ट्रैटेजी वो तरीक़ाकार है जिसके थ्रू आप बच्चों को सिखाते हैं, और वही स्ट्रैटेजी अगर आप हर रोज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो आपकी रूटीन बन जाती है। कुछ स्ट्रैटेजीज आप कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं मगर फिर छोड़ देंगे और एक नई स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे। क्यों? वो इसलिए बिकॉज़ क्लासरूम, एक बच्चा, एक ह्यूमन बीइंग बदलता है। यानी कि क्लासरूम के डायनामिक्स बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से क्लासरूम स्ट्रैटेजीज़ भी बदलती रहेंगी। मगर रूटीन्स वो चीज़ें हैं जो कि बदलती नहीं हैं। मिसाल के तौर पे असेंबली का होना एक रूटीन है। इसी तरह क्लासरूम में सुबह को आके बैठना एक रूटीन है। ये वो चीज़ें हैं जो कि चेंज नहीं होंगी। मगर स्ट्रैटेजी वो है जिसके थ्रू आप बच्चों को कुछ सिखाएँगे। तो ज़रूरी नहीं है कि जो स्ट्रैटेजी मैथ में इस्तेमाल हो रही है, वही स्ट्रैटेजी इंग्लिश में भी इस्तेमाल हो सकती है। इंग्लिश के लिए फ़र्क स्ट्रैटेजी होगी और सिमिलरली मैथ के लिए फ़र्क स्ट्रैटेजी इस्तेमाल होगी। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ है थिंकिंग रूटीन्स। हम इनको थिंकिंग रूटीन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि सोचना हमारे हर रोज़ का अमल है। हम हर रोज़ सोचते हैं, मगर हम किस तरीके से सोचते हैं, ये बात इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग बहुत ज़ाहिरी सरफेस के ऊपर सोचते हैं, बस एक चीज़ को देख के एक ख़्याल बना लेंगे और अपनी ओपिनियन दे देंगे। कुछ लोग होते हैं जो बहुत गहरी सोच के मालिक होते हैं, जो फ़र्क-फ़र्क एंगल से सिचुएशन को देख के फिर अपनी ओपिनियन सामने लेकर आते हैं। सो ये वो थिंकिंग रूटीन्स होती हैं जो कि हम कोशिश करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ बच्चों के अंदर ये थिंकिंग रूटीन्स इंस्टिल कर सकें। मिसाल के तौर पे एक थिंकिंग रूटीन है जिसको हम कोर थिंकिंग कहते हैं। इसके अंदर फ़र्क किस्म की स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी। सिमिलरली इंट्रोड्यूसिंग एन एक्सप्लोरेशन के लिए digging deeper into ideas, perspective taking, exploring art, images and objects, global thinking, ये वो सारी थिंकिंग रूटीन्स हैं जो कि फ़र्क फ़र्क एंगल से किसी भी सिचुएशन, सिनेरियो या प्रॉब्लम को देखती हैं और उसके हिसाब से बच्चों को हेल्प करती हैं कि वो एक अपनी कंक्लूजन को सामने प्रेज़ेंट कर सकें। इस वक्त आपके सामने स्लाइड में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो
टर्म्स लिखी नहीं हैं, ये सारे वो टर्म्स हैं जिनको हम एज स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, मगर क्योंकि इनको इतना रेपिटेटिवली इस्तेमाल किया जाता है कि दे बिकम अ पार्ट ऑफ आर रूटीन, जैसे कि सर्कल ऑफ व्यू पॉइंट्स, claim support question, compass points, I used to think, now I think, see, think, wonder, think, pair, share, step inside, who am I, take a stand, what can be, peel the fruit, reporter's notebook. ये सारी स्ट्रैटेजीज वो स्ट्रैटेजीज हैं जो बच्चों को हेल्प करती हैं कि वो डीपर थिंकिंग और डीपर एनालिसिस को समझ सकें, एक चीज को, एक पॉइंट ऑफ व्यू को डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के थ्रू देख सकें। इनको हम कोर थिंकिंग रूटीन्स ही करते हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ें हम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं वो बच्चों की रूटीन बन जाती है, लेकिन जो चीज़ें कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल हुई और फिर वो छोड़ दी गई तो हम उनको स्ट्रैटेजीज का नाम दे देते हैं। अब हम आते हैं मेकिंग लर्निंग विजिबल, एमएलवी। एमएलवी क्या होता है? मेकिंग लर्निंग विजिबल एक ऐसा टूल है, एक ऐसा तरीक़ेकार है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू आप बच्चों के थिंकिंग प्रोसेस को विजिबल कर देते हैं ताकि बच्चा उसको विजुअलाइज कर सके। ऐसा क्यों है कि बच्चे कार्टून्स देख के, मूवीज देख के, टीवी को देख के कुछ चीज़ों को बेहतर तरीके से ग्रास्प कर लेते हैं, मगर वही चीज़ अगर टीचर क्लासरूम में बोलना शुरू कर दे तो वो चीज़ या तो बच्चे के ऊपर से गुजर जाती है या बच्चा बोर्डम का शिकार हो जाता है। ये चीज़ें इसलिए है कि आज का बच्चा विजुअल एड को बहुत यूज़ करने की कोशिश भी करता है और डिमांड भी करता है, क्योंकि हमारे बच्चे या तो मोबाइल्स या तो आईपैड्स या तो लैपटॉप्स के थ्रू चीज़ों को अब समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ अ फ्यूचर जनरेशन विच रिक्वायर्स अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग। अगर हम उनको 16वीं या 17वीं सदी की ही तरीकेकार से पढ़ाएंगे तो आई एश्योर यू बच्चा सिर्फ और सिर्फ रोट लर्निंग सीखेगा या मेमोरी बेस्ड लर्निंग सीखेगा, मगर उसकी स्किल्स डेवलप नहीं होंगी। यहाँ पे मेकिंग लर्निंग विजिबल एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसमें हम आप मिसाल इस तरीके से देते हैं, जब जब भी कोई कॉन्सेप्ट या कोई सब्जेक्ट या कोई चैप्टर आप इंट्रोड्यूस कराते हैं, पहले दिन मिसाल के तौर पे आपने अगर बच्चों से एक माइंड मैप बनवाया जिसमें आपने बीच में एक लफ्ज़ लिखा या एक क्वेश्चन लिखा, बच्चों के जवाबात लिखना शुरू कर दिए, उसकी वजह से बच्चे अपने जवाबात को सामने देखते हैं, ना सिर्फ अपने बल्कि अपने पीयर्स के भी देखते हैं। वो चीज़ जब क्लासरूम के अंदर दिखाई जाती है, डिस्प्ले की जाती है, तो जब अगले दिन बच्चा आता है तो वो अपने पिछले दिन के प्रोसेस को याद कर सकता है कि ओ अच्छा, कल हमने ये सवाल किया था और उसके ये जवाबात थे, आज हम इस सवाल से आगे बढ़ेंगे, सेकंड स्टेप उठाएंगे, जिसकी वजह से उसका जो प्रोसेस है, डे टू डे प्रोसेस, वो विजिबल हो जाता है इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास। हमारी जो बच्चों की नोटबुक्स होती हैं वो भी मेकिंग लर्निंग विजिबल का ही एक टूल है, एक हिस्सा है। जब हम लोग एज पेरेंट्स अपने बच्चों की नोटबुक्स खोलते हैं, जैसे ही हमें लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ मिसिंग है, हमको पता चल जाता है कि बच्चे ने कोई ना कोई टॉपिक मिस कर दिया था। वो किस तरीके से पता चलता है? बिकॉज नोटबुक भी ये रिप्रेजेंट करती है कि चैप्टर स्टार्ट हुआ, शुरू में उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया, फिर उसकी थोड़ी एक्सरसाइजेस की गई, फिर उसका एक टेस्ट लिया गया। सिमिलरली मेकिंग लर्निंग विजिबल क्लासरूम के डिस्प्ले को प्रोमिनेंट करता है और स्टेप बाय स्टेप टीचर दिखाती है कि बच्चा क्लासरूम के अंदर क्या पढ़ रहा है और कौन सा कॉन्सेप्ट किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। नाउ लेट्स कम टू द टर्म इंटरवेंशन। आपने अक्सर सुना होगा अपने एकेडमिक कोचेस को कि वो वर्ड इंटरवेंशन का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट डज इंटरवेंशन मीन? इंटरवेंशन मीन्स कि when you are delivering a lesson inside your classroom or maybe outside your classroom and something goes wrong, something doesn't work the way you intended it to work, the coach comes up with an intervention, an idea, a process, a strategy which will help you or facilitate you to ensure कि नेक्स्ट टाइम जब आप वो लेसन या उस लेसन की एक्सटेंशन पढ़ाएंगे तो वो एरिया जो पहले आपके वीक थे अब आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए। So intervention is just a support mechanism that comes from the academic coach that helps you, provides you with an example or with an idea that can facilitate you inside the classroom. कोचेस अक्सर अपनी इंटरवेंशन को मॉडल भी करती हैं, विच इज़ कॉल्ड मॉडलिंग, विच इज़ ऑल्सो वेरी एसेंशियल। जब तक एकेडमिक कोचेस आपको मॉडल करके नहीं दिखाते तब तक आपको पता नहीं चलता कि आपने किस तरीके से उस इंटरवेंशन को समझ उसको लेके चलना है अपनी क्लासरूम में। सो इंटरवेंशन इज अ मैकेनिज्म और अ सपोर्ट मैकेनिज्म दैट कम्स फ्रॉम योर एकेडमिक कोचेस or any teacher that is facilitating you to understand your classroom dynamics in a better way.